So today I am going to Rishikesh, to my home, just to spend some time with my family. आज वैसे गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा, धूप है और चलते टाइम लग रहा था कि पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा और पता नहीं क्या हालत होगी, बट अभी लग रहा है कि मौसम ठीक है, मतलब बुरा नहीं है एक्चुअली। बाइक का ओडोमीटर 6423 किलोमीटर्स हो चुका है, जो कि कुछ दिनों में 7000 पहुंच जाएगा और 8500 बस की सर्विस है। बट आई एम नॉट श्योर कि 8000 पे सर्विस करानी चाहिए या फिर उससे पहले ही करवा लूँ। बट अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि सब चीज़ें ठीक हों। बस इसका एयर फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर क्लीन हो सकता है इसका, वो शायद मैं एक बार चेक कर लूँगा। बट अदरवाइज़ 8000 किलोमीटर्स नो इश्यूज़, एकदम मस्त रपचन डूस चल रही है बाइक ये, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो आई एम हैप्पी। सो आई एम नाउ ऑन मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, बट आई कांट यूज़ द एक्सप्रेस वे because bikes are not allowed there. So the second option is that you stay on the left and then shift or take a left when the elevated road comes, which connects the Meerut old Meerut highway. So that is what I am going to choose, because our government is not ready to let bikers use better roads, because some old age Buddha people are sitting in the chair deciding what is right and what is wrong for us. So yeah, bikers are not allowed to have good roads, even though we are ready to pay tolls. But क्या कर सकते हैं, अपने पास यही रास्ता है तो इसी से चले जाएंगे। देयर इज़ अ पॉइंट इन दिस बाइक एट अराउंड 6500 RPM, जहाँ पे देयर इज़ अ वेरी वेरी एक्सट्रीम बज़ इन दिस बाइक, which comes at around 85 to 87, not 85 actually, 87 if you are in the 6th gear. There is buzz on handlebar, there is buzz on footrest and on engine guards. Lot of buzz, unbearable buzz. But that is just on the specific speed in the 6th gear, and that's it. Otherwise this bike is manageable, and anything above that is not buttery smooth, but I think quite smooth. So we are on the elevated road. This is where the fun starts now. I can just put this bike on cruise control and let this bike do its thing. But I have a very interesting question to share. Not question, but information to share, that since the government is already planning to introduce 40% tax above 350cc bike, why not give them access to better roads, expressways? Since you are charging road tax more than almost half of the bike's value, why not just why not? By the way, I am now on elevated road, and the only good patch I have got today, and a 12 kilometer patch, that's it. इसके बाद पूरा रास्ता ख़राब है, बट या जो है सो है, क्या कर सकते हैं। फाइनली मैं हरिद्वार वाले हाईवे पे चढ़ चुका हूँ, और मोदी नगर वाला जो इरिटेटिंग रास्ता है, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। मेरे को लगता है 4, 5, 6 बजे तक मुझे पहुँच जाना चाहिए ऋषिकेश। अब इतना टाइम लगता नहीं है एक्चुअली। चलो थोड़ी देर बाइक भगा ली जाए,
काफ़ी देर से मैं 70-60 पे चला रहा हूँ। थोड़ा सा फ़न भी होना ज़रूरी है कभी कभी। तो ये दिखती नहीं है कब 100 पे जाती है। इन हाईवेज़ पे से 100 ट्राई करना इज़ नॉट गुड, बट मे बी बस थोड़ी देर के लिए आके वापस आई विल कम बैक टू माई मेन स्पीड। दिस बाइक on 122 it is pulse free. I don't see any vibration at 120. आई थिंक मैंने जो सस्पेंशन ट्यून किया है उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कम स्टेबल लग रही है अभी, क्योंकि लास्ट सेटिंग में विच वॉज कंफर्टेबल सेटिंग, दिस वॉज मोर दिस फेल्ट लाइक मोर स्टेबल, बट नाउ it's a little bit jumpy, not that jumpy, but it doesn't feel like planted on the road. So this is what the difference I feel after changing the suspension setup. But apart from everything else, if you are riding at 70-80, which is my go-to speed, I don't like to rush things. I am perfectly fine riding it at 70 for all day. So yeah, at 70 I think this suspension is buttery smooth. This setting, which is comfortable setting, I have seen. So if you open the seat of the bike, there is a paper जिसमें recommended setting जो है सस्पेंशन की, compression, rebound, preload की, वो लिखी हुई है. सो यू कैन जस्ट डू दैट. और एट 70-75 दिस सस्पेंशन फील्स अमेजिंग. आई एम ऑलमोस्ट हाफ वे नाउ. जितना मैं आ चुका हूँ उतना ही अभी ऋषिकेश और बचा है, विच इज़ अराउंड 120-130 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. पेट्रोल भराते टाइम रिकॉर्ड करना ही भूल गया और पता नहीं किस सोच में डूबा मैं ऑलमोस्ट रुड़की पहुँच ही चुका हूँ. रुड़की बाईपास से मैं निकल रहा हूँ और ये पैम्पस ग्लास लगी हुई है यहाँ पे कितनी सारी. हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं रुड़की बाईपास पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से हरिद्वार भी ज़्यादा कोई दूर बचा नहीं है. यू कैन नाउ सी गंगा. इट्स अ लिटिल मडी राइट नाउ बिकॉज ऑफ द रेन्स. It will be clear in the next 1 or 2 months, but right now people are literally swimming in the center, and the ghats are also very empty. Ghats are empty right now. मुझे लगा नहीं था कि, मुझे लगा था ये तो पीक टाइम है, बट आई थिंक शायद लोग तबाही की वजह से अभी आ नहीं रहे हैं. और वैसे भी आज मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का मिला है यहाँ पे रास्ता भी. ट्रैफिक अच्छे से 1 बजे मैं चला था, अभी 5:37 हो चुके हैं. दैट मीन्स. और यह है हर की पौड़ी, सबसे फेमस जगह हरिद्वार में नहाने वाली. और ये पुल मैं पता नहीं कितने सालों से देखता आ रहा हूँ. सेम चीज़, सेम फीलिंग हमेशा यहाँ पे. एक वक्त था जब यहाँ पे पापा की पोस्टिंग हुआ करती थी. ये लेफ़्ट में जो जंगल है यहाँ पे है क्या नाम है उस जगह का, ये राजा जी का बेसिकली एंट्री गेट है. तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट की चौकी है और यहाँ पे पापा की पोस्टिंग हुआ करती थी. मोतीचूर रेंज, यस, मोतीचूर में माय फादर वाज पोस्टेड आई थिंक 5-6-7 ईयर्स बैक. अब तो मुझे याद भी नहीं है कितना ज़्यादा वक्त बीत चुका है इस चीज़. बहुत यादें जुड़ी हैं इस जगह से. मेरा पूरा बचपन है यहाँ पे. ये जो मचान है इसके आसपास से कहीं से रास्ता जा रहा है मेरे स्कूल का, जो कि एक शॉर्टकट हुआ करता था जिसे हम जंगल क्रॉस करके जाते थे. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड रायवाला. और ये रायवाला भी ऑलमोस्ट
क्रॉस होने वाला है और यहाँ से अब मेरा घर मुश्किल से 15 मिनट है अगर जाम ना मिला तो। और ये मेरे घर का मोड़ ऑलमोस्ट आ गया। यहाँ से लेफ़्ट लेके और अब हम फाइनली पधार चुके हैं अपने घर। और फाइनली आई एम एट माई होम।